Hello everyone. Hello everyone. Hope you all are there. Please raise your hand if you all are there. Okay. Please comment down in the section if you all are there. Do comment down. Just waiting for all of you. Hello Palak. Is I audible to you all? Is I audible to you all? So we can start the session right now. Um, so first, I just want to say that I am Mehek, the quest facilitator. In this session, I am going to discuss with you about ice-breaking question of interview. Tell me something about yourself. All right. So the time you enter in the cabin of the interviewer and ask him for the permission to take a seat, and you just sit there and you just handle your resume to him and her, then the interviewer just look at your resume and suddenly a voice comes, tell me something about yourself. So all you have some kind of butterflies in your stomach and you will get stressed out and you are not able to answer it properly. Why it is happening? I'm here to help you, all right? So when this happen, just tell me क्या क्या stress होता है when you are taking an interview. ये सब मुझे आप पहले थोड़ा सा help करो कि किस चीज़ का stress होता है जब आप किसी को अपने आप को introduce करते हो. Just comment down in the section. Hey मुग्धा, hey शिवानी. तो आप लोग मुझे बताओ कि क्या स्ट्रेस आता है मेनली. सपोज जब आप इंटरव्यू के सामने बैठते हो एंड सडनली यू विल गेट स्ट्रेस्ड आउट कि अब मैं क्या बोलूँ एक इंटरव्यूअर को. सो वो सारे पॉइंट्स आज हम क्लियर करेंगे एंड आई नीड योर सपोर्ट. डू लेट मी नो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं आप. हेलो प्राची, हेलो फिल्जा, हेलो शिवानी, श्रुति, हेलो नेहा, हेलो मुक्ता, hello Swati, hello Savi. Great, you all come here. Thank you, I appreciate you all. Yes ma'am, you are audible. Yes. So we are going wait, yeah. So we are going to discuss this question. How can we answer it in a simple manner without taking a stress and tension? So what I have done, I have divided the answer in order in few segments. If you've been asked by an interviewer, tell me something about yourself, you will never get stressed out now. So we are starting it.
सो फर्स्ट वी विल डिस्कस आउट नेम. सबसे पहले आपका आता है नेम. इनको हम दो प्रकार से बोल सकते हैं, आई एम महक या माई नेम इज महक. सो वी कैन डू इट इन अ टू टाइप्स. लाइक सबसे पहले ऐसे बोल सकते हो नेम को, आई एम महक या माई नेम इज महक. ओके, सबको ये समझ आ गया कि आप दो टाइप से नेम बोल सकते हो अपना, आई एम महक और माई नेम इज महक. सो देन नेक्स्ट चीज आती है प्लेस, जहां आप रहते हो पूरा. तो ऐसे कोई कोई बोलते हैं कि आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई बिलोंग टू दिल्ली या आई लिव इन दिल्ली. सो ये चीजें पहले आ गया हमारा नेम. नेम को हम दो टाइप से बोल सकते हैं, आई एम महक और माई नेम इज महक. फिर आता है प्लेस. प्लेस को बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम दिल्ली या आर आई बिलोंग फ्रॉम दिल्ली, आर आई लिव इन दिल्ली. तो हम ये तीन चीजों से बोल सकते हैं. with which information we should begin with the introduction. Like first आप अपने नेम से बोल सकते हो, पहले नेम बोलना है एंड फिर प्लेस. नेम ऐसे आई एम महक, माई नेम इज महक, एंड देन सेकेंड इज योर प्लेस, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई बिलोंग टू दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली. देन आपकी आती है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन. हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कभी कभी हमने रिसेंटली कोई क्वालिफिकेशन करी होती है, हम वो बोलते हैं. सपोज if you are an graduate, then you will say I am a graduate or I am a postgraduate, my highest qualification is this. ऐसे I am a graduate या तो I am a postgraduate or I am a fresher. ऐसे नहीं बोलना. I have recently done my graduation from this university या my highest qualification is BBA or I am graduated. ऐसे. And suppose you have done a diploma. So फिर ऐसे बोल सकते हो, apart from your academic qualification, if you have done a diploma course for getting a good job, do mention that above along with your highest qualification. अगर आपने डिप्लोमा किया है सपोज, तो पहले अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बताना एंड देन फिर अपना डिप्लोमा के बारे में बताना. डिप्लोमा के बारे में कैसे बताओगे? Apart from my academic qualification, if you have done any kind of diploma course for getting a good job, do mention that also along with your highest qualification. So it is very simple. ऐसे बोल सकते हो, I have done my diploma in suppose swing technology from Savitribai Phule ITI. तो हम ऐसे बोल सकते हैं. पहले अभी थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. पहले किससे स्टार्ट किया था? नेम से. फिर मैंने स्टार्ट किया प्लेस. फिर थर्ड मैं अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पे आई हूं. ठीक है. अच्छा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड हेजिटेशन, हाँ बहुत होती है जब हम एक इंटरव्यू के सामने बैठते हैं. तो उस कॉन्फिडेंस और उस लो कॉन्फिडेंस को हम कैसे हटाएं? वो सपोज आप कहीं इंटरव्यू के पास जा रहे हो तो एक कॉन्फिडेंट होना चाहिए, हाँ मैं अपने बारे में बोल सकती हूँ किसी को भी, हाँ ये मेरा कोर पर्पस है, मैं यहाँ पे बस एक जॉब लेनी है मुझे, बस मेरा जॉब का पर्पस है और कुछ नहीं. ठीक है. तो अभी हमने तीन चीजें कवर की है. योर नेम, सपोज माई नेम इज महक, एंड प्लेस आई लिव इन या आई बिलोंग टू, एंड द थर्ड इज योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन. ऐसे बोल सकते हो, माई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इज आई एम अ ग्रेजुएट, and apart from this, apart from my academic qualification, I have done my diploma in swing from Savitribai Phule ITI. ये खत्म हो गई तीनों चीजें. अब आती है हमारे स्किल्स एंड एक्सपीरियंस. तो स्किल्स एंड एक्सपीरियंस तभी होता है जब तुमने कहीं जॉब की होती है. इफ यू आर नॉट अ फ्रेशर एंड यू आर इन द मिड ऑफ योर करियर, सो व्हेन यू कैरी योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, स्पीक अबाउट यू वेरी मच अबाउट इट. लाइक सबसे पहले हम बोलते हैं एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस लाइक ऐसे बोलोगे, आई एम कैरिंग इन एक्सपीरियंस ऑफ 5 years. ये सेंटेंस बन रहा है. आई एम कैरिंग इन एक्सपीरियंस ऑफ 5 years, 4 years, 3 years. एक्सपीरियंस को हम ऐसे बोलते हैं. एंड अपनी स्किल्स को कैसे बोलेंगे? आई एम गुड इन कंप्यूटर एंड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सपोज आई एम क्वाइट गुड इन. हम क्वाइट गुड इन क्यों बोलते हैं हम अपनी स्किल्स में? बिकॉज ये इंटरव्यूअर की जॉब होती है कि वो आपको जज करते हैं कि हाँ मैं जावा में गुड हूं. ऐसे नहीं बोलना आई एम गुड इन, आई एम ये नहीं. आई एम क्वाइट गुड इन कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज.
ठीक है, अब थोड़ा सा ऐसा करके तुम्हारी क्वायरीज देखते हैं. लैक ऑफ नर्वस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हेजिटेशन. यस, फर्स्टली मैम, हेजिटेशन. ग्रेट. अच्छा, अभी तक मुझको 3 चीजें जो हमने पढ़ी हैं, पहले आप वो बताइए कि क्या क्या पढ़ा है. नेम, नेम. दूसरा क्या पढ़ा हमने? नेम. फर्स्ट इज नेम, सेकेंड इज प्लेस, थर्ड इज हाईएस्ट क्वालिफिकेशन. मेरे को तीनों जल्दी से राइट डाउन करो सब कि तीनों क्या क्या चीजें हैं. या नाउ दैट इज गुड. टेक अ डीप ब्रेथ. चलो ले ली. या तीनों चीजें पहले मुझे बताओ, तीनों है क्या? प्लेस. या ग्रेट. नेम, फर्स्ट इज नेम, पहले लाइक माई नेम इज महक, आई एम महक, ऐसे. देन प्लेस, देन हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, एंड देन अच्छा, नेम, प्लेस, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, ग्रेट. एंड देन योर कम्स स्किल्स एंड एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस को बोल सकते हैं आई एम कैरिंग एन एक्सपीरियंस ऑफ 4 years, 5 years, 3 years. एंड देन स्किल्स आती हैं, स्किल्स. तो स्किल्स को हम कैसे बोल सकते हैं? आई एम क्वाइट गुड इन जावा प्रोग्रामिंग. क्यों बोलते हैं हम क्वाइट गुड इन? बिकॉज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की है. एम्प्लॉयर आपको जज करता है कि हाँ आप गुड हो जावा प्रोग्रामिंग पे. यस. प्लेस, I am Shrashti. I am from Delhi. I am pursuing ITI of the trade ICTCM. So, Angel ROE. सबसे पहले आप अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बोलो, बिकॉज हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के बाद आप अपने डिप्लोमा पे जाओ. ठीक है ना? लाइक मैंने अभी आपको पहले ही समझाया था कि पहले हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एंड बोलो अपार्ट फ्रॉम माई एकेडमिक क्वालिफिकेशन आई हैव डन डिप्लोमा इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर. हाँ, नेम शिवानी, ग्रेट. खुशी, नेम, प्लेस एंड स्टडी, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन. स्टडी नहीं, वी कैन से दैट हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एंड फिर उसके अंदर आप डालोगे अपार्ट फ्रॉम माई एकेडमिक क्वालिफिकेशन. या आई एम मुक्ता कौशल फ्रॉम दिल्ली. ग्रेट, ग्रेट. सो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस थोड़ा सा और समझते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर आउट हो जाए एक्सपीरियंस होता क्या है. Like if you are not a fresher and you are in the mid of your career, so you must carry in some skills and experience. Speak about very much strong about it. आपको थोड़ा सा strong बोलना पड़ेगा. Like I am good in computer or Java programming. If you, it's your opinion that you are quite good in, right? It's your job of the interviewer who will decide. They will decide you whether you are good or not in that particular sector, right? So एक तो उस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं. ठीक है, स्किल्स का पता चल गया कि कैसे बोलते हैं आई एम गुड इन कंप्यूटर जावा प्रोग्रामिंग. अगर आपने एक्सपीरियंस बोला है तो आई एम कैरिंग एन एक्सपीरियंस ऑफ 4 years 5 years. सीधा ये दो समझ लो. अगर कभी तुम स्किल बोल रहे हो तो ये बोलना आई एम क्वाइट गुड इन दिस पर्टिकुलर थिंग. एंड अगर तुम एक्सपीरियंस का बोल रहे हो तो आई एम कैरिंग एन एक्सपीरियंस ऑफ दिस सेक्टर. राइट दैट. अच्छा, अब ये तो सारा तुम्हारे रेज्यूमे में था. रेज्यूमे के अलावा अपार्ट फ्रॉम योर रेज्यूमे क्या क्या चीजें आएंगी पहले वो खत्म करते हैं. ये 10 कमेंट्स. हेलो मैम, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं हो उसको कैसे बोलना है? अच्छा, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो वो कुछ मत बोलना, बिकॉज आपके रेज्यूमे से ही पता चल जाता है दैट यू आर एन फ्रेशर. So don't write in your resume that you are a fresher. Yeah. Hello ma'am, the place, skills and experience. Divya Malhotra Chopra, then please don't say anything about experience. Great, great, great. Ma'am, please save this live session for our future purpose that helps you missed out the technical reasons. Okay. Okay, great. अच्छा, अब हमारी 4 चीजें खत्म हुई है. सबसे पहले कैसे नेम बोलना है, फिर हमें क्या बोलना है? प्लेस,
फिर हमें क्या बोलना है, फिर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, और उसी में बता देना है अपार्ट फ्रॉम माई एकेडमिक क्वालिफिकेशन मैंने डिप्लोमा किया है। फिर थर्ड चीज क्या आती है हमारी, एक्सपीरियंस एंड स्किल्स। ठीक है, पहले तुम एक्सपीरियंस बोलोगे, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो मत बोलना, बिकॉज फिर अच्छा नहीं लगता। ठीक है, एक्सपीरियंस में नहीं है तो मत बोलना, एक्सपीरियंस है तो ऐसे बोलना कि आई एम कैरिंग एन एक्सपीरियंस ऑफ 4 years और 5 years। एंड फिर तुम अपनी स्किल्स के बारे में बोलोगे। स्किल्स के बारे में कैसे बोलोगे, आई हैव क्वाइट गुड इन कंप्यूटर और जावा प्रोग्रामिंग, बस यहाँ तक। उसके बाद आते हैं अपार्ट फ्रॉम रेज्यूमे। तो कभी कभी क्या होता है तुम्हारे अपार्ट फ्रॉम रेज्यूमे में वो पूछते हैं व्हाट इज योर फैमिली बैकग्राउंड। दे विल मस्ट आस्क यू फर्स्ट अपार्ट फ्रॉम रेज्यूमे में हमेशा क्या बोलते हैं, फैमिली बैकग्राउंड। तो फैमिली बैकग्राउंड को हम कैसे बोल सकते हैं, कोई बताएगा मुझे? फैमिली बैकग्राउंड को कैसे बोल सकते हैं? टाइप दैट, कमेंट डाउन। हाँ, अपार्ट फ्रॉम योर रेज्यूमे, क्योंकि ये सब चीजें तो रेज्यूमे में थी। Okay, my name is Radhika Arant. I live in Delhi at Welcome, and my highest qualification I have done 18 20 26%, and after pursuing ITI Vivekanand in the trade of programming. Great, 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 going good. बट थोड़ा सा इसको एक बार मैं इसको सेव करूंगी और फिर लास्ट में मैं खुद की इंट्रोडक्शन भी दूंगी। तो बस मेरे को ये बताओ कि फैमिली बैकग्राउंड को कैसे बोलते हैं, जल्दी से कमेंट डाउन करूं। दे आर 9 members in my family including me. इट्स क्वाइट गुड, बट थोड़ा सा इसमें आरोही थोड़ा सा भी हम करेंगे, इसको इम्प्रूव करेंगे। और लिखो आरोही के बदले और कौन है। अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव एन यंगर ब्रदर। नो नो नो, अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे दो इंटरव्यू सोचेगा क्या बोल रहे हैं, नहीं, नॉट गुड लाइक दैट, थोड़ा सा। हाँ, my name is Dolly. I belong to Delhi. My highest qualification is I am graduate, and now I am doing a postgraduate with 1 year diploma course. Yeah, for Dolly, तो आप ये लिखोगे कि apart from my academic qualification, I have done my diploma from this particular sector. Basically, I am from Punjab but born and brought up in Delhi. So you just said that कि मैं दिल्ली से हूँ। अपार्ट फ्रॉम माई रिज्यूमे आई हैव माई ब्रदर। अच्छा, तो कमिंग बैक, याद रखना बैकग्राउंड को, फैमिली बैकग्राउंड को कैसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं सो फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न। ठीक है, ऐसे। या तो एक तो पहला चीज ये हो गई, सो फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न, पहले तो ये चीज। सेकेंड चीज, इफ आई टॉक अबाउट माई फैमिली, ये सारी ओपनिंग लाइन्स है, आप ये सब लिख भी सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो इस चीज को, ऐसे बोल सकते हो फैमिली बैकग्राउंड को, सो फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न। या तो इफ आई टॉक अबाउट माई फैमिली, या इन माई फैमिली दे आर 4 members। ठीक है, एंड माई फादर इज my father is a businessman and my mother is a homemaker या टीचर, ऐसा कुछ। My mother is a homemaker. हाँ, father is a businessman and I have a sibling. Okay, great, going good. My name is Renu. I have 5 members. ऐसे नहीं, मैंने जो ओपनिंग लेटर दिए पहले वो बोलो। So far as my family background is concerned, then you will start that कि हाँ मेरे 5 members है फैमिली में। या तो दूसरी ओपनिंग लाइन मैंने बोली है, इफ आई टॉक अबाउट माई फैमिली, दूसरी लाइन, या इन माई फैमिली दे आर 4 members, ऐसे कुछ। ठीक है, आई हैव नहीं बोलना। हाँ, ग्रेट अंजलि, ग्रेट 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 ग्रेट। एंजल आरोही, नाउ कमिंग टू माई फैमिली बैकग्राउंड। नाउ कमिंग टू माई फैमिली बैकग्राउंड डजंट मेक सेंस, आप ये बोल सकते हो सो फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न, या तो दूसरी चीज ये बोल सकते हो इफ आई टॉक अबाउट माई फैमिली, या तो थर्ड चीज ये होगी इन माई फैमिली दे आर 4 members, लाइक दैट। So far as my family background concerned, if I talk about my family, in my family there are 4 members. My father is a businessman. Great, Jyoti, great.
I belong to a middle caste family. मोहिनी प्लीज ओपनिंग लेटर डालो कि सो फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न. प्लीज ओपनिंग लेटर्स आप लोग सब डालना कि ये 3 ओपनिंग लेटर्स लिख लो आप लोग. सो फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न, पहली चीज. दूसरी चीज, इफ आई टॉक अबाउट माई फैमिली. फिर तीसरी चीज, इन माई फैमिली देयर आर 4 मेंबर्स. ठीक है, फैमिली का समझ आ गया आप लोगों को. नाउ कम टू हॉबीज. हॉबीज वो होती है जो आप अपनी फ्री टाइम में करते हो. लाइक जब तुम हॉबीज बोलते हो ना, तब एक लाइट टोन होनी चाहिए. ये नहीं होता, क्योंकि हॉबीज एक पर्सनल इंफॉर्मेशन है. ये ऐसे नहीं है कि प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन नहीं होती हॉबीज. एक इसमें ना टोन बहुत पोलाइट होती है. सो हमेशा हॉबीज में थोड़ा सा पोलाइट रहना, अपनी टोन को पोलाइट करना. लाइक इसकी ओपनिंग लाइंस पहले मैं बताती हूँ. I have a couple of hobbies, ऐसे. या तो if I mention about my hobbies, I fond of reading books, ऐसा कुछ. Okay, please don't write in my family is right. Please write if I talk about my family या so far as my family background is concerned. मेन ये तीनों लाइंस लिखनी है. बट अभी हम हॉबीज कर रहे हैं. हॉबीज में तुम सब लिखो कि आई हैव कपल ऑफ हॉबीज लाइक रीडिंग बुक्स, प्लेइंग बैडमिंटन, ये सब. या एक और ओपनिंग लाइन होती है, इफ आई मेंशन अबाउट माई हॉबीज आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स. ऐसे कुछ हॉबीज. प्लीज राइट द हॉबीज इन द लाइन. हॉबीज वो होती है जो आप अपनी फ्री टाइम में करते हो. लाइक आई प्ले badminton. Yeah, I have couple of hobbies. If I talk about hobbies, I am fond of reading books. If I mention about my hobbies, please correct this, Jyoti. If I mention about my hobbies, I am fond of reading books. Write it down. Yeah, great, Mukta, great. Like she write down clearly. So far as my family background is concerned, in my family 9 members. Great, Arohi, great. Hobbies, please लिखो अपनी सब hobbies जो भी देख रहे हैं लाइव सेशन. प्लीज हॉबीज लिखो सब. हॉबीज लिखो जल्दी. हॉबीज में 2 ओपनिंग लेटर अभी मैंने तुम्हें बताई है. अगर हॉबीज कभी लिख रहे हो तो सबसे पहले आई हैव कपल ऑफ हॉबीज लाइक, पहली चीज ये. दूसरी चीज ये आप ये बोल सकते हो, इफ आई मेंशन अबाउट माई हॉबीज आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, लाइक दैट. If I mention about my hobbies, I'm fond of listening music. Great, Arohi. Great. Great, Arohi. Great. अच्छा, तो ये तो बेसिक हो गया. अब मैं अपनी इंट्रोडक्शन दूंगी और तुम लोग थोड़ा सा मुझे बताना है कि कैसे लगी. एंड तुम भी अपनी एक इंट्रोडक्शन बनाना सेम ऐसी अभी ग्रुप में ही. पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन देती हूँ. सपोज तुम सब मेरे इंटरव्यूअर हो, ठीक है. सबसे पहले मैं अपने इंटरव्यू को कहती हूँ प्लीज कैन आई सिट. ये हो गया. तो वो सपोज अब उन्होंने क्या कहा है, तुम लोग बहुत ऐसा करते हो कि सर माय नेम इज महक, सर I live in Delhi, सर आई एम कैरिंग एन एक्सपीरियंस, सर. ये बहुत बार नहीं लगाना. सर एक तो फर्स्ट में लगाना है कि सर माय नेम इज महक, और लास्ट में जब इंट्रोडक्शन खत्म हो जाए ये बोलना है दैट्स ऑल अबाउट मी सर. सिर्फ 2 बार सर आना चाहिए, ठीक है. ऐसे नहीं होना चाहिए कि सर माय नेम इज महक, सर आई बिलोंग टू दिल्ली. सर नहीं आना. सिर्फ एक पहली बार सर आएगा और जब तुम लास्ट में एक लाइन बोलोगे दैट्स ऑल अबाउट मी सर. तो अभी मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगी एंड यू विल ऑल द जजेस टू मी अराउंड. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट इट आउट. सर माय नेम इज महक, आई बिलोंग टू दिल्ली. माय रिसेंट क्वालिफिकेशन इज आई एम ग्रेजुएटेड इन अ कॉमर्स स्ट्रीम.
I'm carrying an experience of 1 year. I'm very good in delivering classroom lectures. Apart from my resume, so far as my family background concerned, there are 4 members in my family. My parents, we are 2 siblings, and I am the youngest one. And if I talk about my hobbies, I am fond of listening music, playing badminton, exploring different kind of places. That's all about me, sir. एक पहले सर आया और एक बाद में आया, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत ही स्वीट सी एक, जब तुम बोल रहे हो ना, बहुत ही स्वीट सी चीज बोल रहे हो इन अ प्रॉपर मैनर। देख रहे हो नेम से कहाँ हम पहुंच गए, हॉबीज भी आ गई, सब आ गया। ये जो इंट्रोडक्शन होती है ना, अगर तुम एक बोल दोगे ना, तुम रॉक कर जाओगे अपने इंटरव्यू में। अच्छा चलो जजेस, प्लीज ऐसा बनाओ सब, एक पूरी मेरे को, जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन दी तुम सबको, अब तुम लोग इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। उसमें सबसे पहली चीज क्या आनी चाहिए, नेम, माई नेम इज महक। फिर दूसरी चीज क्या आई है, प्लेस, आई लिव इन, आई बिलोंग टू, ऐसा कुछ। थर्ड, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, और फिर अपार्ट फ्रॉम माई एकेडमिक क्वालिफिकेशन आई हैव डन ITI, ये खत्म हो गया। देन एक्सपीरियंस आता है और स्किल्स आता है। अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, डोंट मेंशन इट। इफ यू हैव द स्किल्स देन यू कैन मेंशन योर स्किल्स। एंड स्किल्स के बाद क्या आएगा, स्किल्स के बाद जल्दी बताओ, स्किल्स के बाद हाँ, ग्रेट रंजिता, ग्रेट, थैंक यू रंजिता। अच्छा मेरे को सब थोड़ा सा, ये जो मैंने अभी इंट्रोड्यूस किया अपने आप को, थोड़ा सा आप लोग लिखो कि आप कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे। उसमें ये आना चाहिए, नेम आना चाहिए, प्लेस आना चाहिए, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, इफ यू हैव एन एक्सपीरियंस देन यू कैन राइट एक्सपीरियंस, देन आपकी स्किल्स आनी चाहिए। स्किल्स के बाद क्या था बताओ सब, मैं पूछ रही हूँ स्किल्स के बाद क्या था। स्किल्स के बाद फिर तुम जब रेज्यूमे खत्म हो गया, रेज्यूमे के बारे में हो गया, फिर बोलते हो अपार्ट फ्रॉम माई रेज्यूमे अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताते हो, अपनी हॉबीज बताते हो, फिर बोलते हो दैट्स ऑल अबाउट मी सर। यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ यही पूछा है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, दैट्स इट। स्वाति, स्किल्स के बाद अपार्ट फ्रॉम माई रेज्यूमे, फैमिली बैकग्राउंड एंड देन हॉबीज। थैंक यू अनु। स्वाति समझ आया, भावना, रॉय, अवनी, नितेश मौर्य, रंजिता, गरिमा, दिव्या, मीनू, शिवानी, रंजिता, एंजल, आरोही, जस, ज्योति, इशिका, थैंक फॉर ऑल यू आर कमिंग हियर। मुझे थोड़ा सा तुम लोग बताओ कि थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन लिखो यहीं पर जल्दी से कमेंट डाउन सेक्शन पे। ओके, ज्योति ने लिखा है, माई नेम इज ज्योति, आई बिलोंग टू दिल्ली, माई हाइएस्ट क्वालिफिकेशन इज MCOM। अपार्ट फ्रॉम माई academic qualification I have done diploma in stenographer and secretarial practices from ITI Moorigate. I am carrying an experience of 1 year in Rohini Court. Apart from my resume, Rohini, हाँ, apart from my resume, there are 4 members in my family. ये नहीं, there are 4 members अपार्ट फ्रॉम माई रेज्यूमे। इसकी मैंने आप सबको लाइन दी थी ज्योति, मैंने क्या बोला था, सो फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड कंसर्न, या तो ये चीज बोल सकते हो, या आई टॉक अबाउट माई फैमिली। इफ आई टॉक अबाउट माई फैमिली, दिस इज द सेकेंड ओपनिंग लाइन, एंड द थर्ड ओपनिंग लाइन इज इन माई फैमिली दे आर 4 members। तो इन माई फैमिली लिखो, दे आर 4 members कहां पर ज्योति, सो youngest one, please complete it। and पहले तुम सर बोलोगे और लास्ट में भी तुम सर बोलोगे, बीच में कहीं सर नहीं आना चाहिए। मैं एक और बार रिपीट करूंगी, अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगी। सबसे पहले आप लोग इंट्रोड्यूस करो। आई थिंक आई लविंग दिस लाइव सेशन। जल्दी से आप सब अपने आप को इंट्रोड्यूस करो।
So far as my family background concerned, Mohini, you can write this as your opening line. मैं 5 मिनट्स में अपना इंट्रोडक्शन दूंगी, पहले तुम सब इंट्रोडक्शन दो. हाँ. Great, Arohi. Great, great, great. I think you done a great job in few seconds, few minutes. Great, Jyoti. So far as my family, so far is my family nahi. So far as my family, Sida. There are 4 members in my family. I am the youngest one. My father is in government employee and mother is housewife. Yeah, great, Jyoti. Great. Great, Jyoti. ओके, जस्सी ने लिखा है, कॉल जस्सी. सर, मैम, माय नेम इज जसदीप कौर. आई बिलोंग टू दिल्ली. आई एम परस्यूइंग. करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ परस्यूइंग. सब बताओ मुझे, परस्यूइंग के स्पेलिंग क्या होते हैं. Pursuing 12th from NIOS, and recently I am doing a desktop publication. Jassi, apart from my academic qualification, it is the good line. Then you will mention about your ITI. There are 4 members in my family. My mother is a homemaker. My father is an employee. If I mention about my hobbies, I am fond of listening music. Great, Jassi, you have done great job. I think yes, great. Shifalika Dhawan. Okay, Shifalika. My name is Shifalika. I am pursuing ITI from Mangolpuri with the trade COPA. Shifali, तो मे बी यू मिस्ड आउट. पहले अपना नेम, फिर क्या, प्लेस, फिर थर्ड, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने क्या लिया है, फोर्थ क्या, जल्दी से, ये मुझे प्रॉपर चाहिए. हाँ, प्रॉपर. परसिंग किसने लिखा है, ये अंजलि. परसिंग नहीं होता, परस्यूइंग होता है. सोनकर क्वीन. हाँ, सोनकर, यू डन राइट. सोनकर ने सही लिखा है परस्यूइंग की स्पेलिंग. अंजलि, प्लीज करेक्ट इट. मैम, यहाँ और तो होगा, बट किसी के सामने बोलने में जो हेजिटेशन होती है वो कम करे प्लीज. अच्छा, क्या होता था, मैं अपनी स्टोरी सुनाती हूँ. जस्ट अ फ्यू सेकेंड वाली स्टोरी. सो मैंने नहीं कभी सोचा था कि मैं तुम्हारे सामने कभी लाइव सेशन कर पाऊंगी. पहले मैं सोची, इतनी हेजिटेट होगी, मैं कहा यार सबके सामने, और मेरे सामने कोई जवाब नहीं देगा मुझे, ऐसे लगा मुझे. सो मैं बहुत हेजिटेट हुई. फिर मैंने अपने आप को एक कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ, अगर गलत हो गया तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे लोग जज करेंगे, उससे ज्यादा क्या होगा, उससे ज्यादा कोई मुझे डांट देगा कि आपने कुछ गलत बोला. लेकिन मैंने ये सोचा, एटलीस्ट मैं ट्राई तो करूं. अगर मैंने वो ट्राई और मैंने वो अटेम्प्ट नहीं किया होता, अगर मैं यहाँ पे अभी अटेम्प्ट नहीं कर रही होती, तो फिर मैंने उस चीज को अचीव भी नहीं कर पाई. समझ रहे हो ये चीज. हेजिटेशन सब रिमूव कर दो. कहो कि आई विल रॉक दिस इंटरव्यू, एंड मैंने अभी तक जो पढ़ाई की है, जो अभी 10 साल 12 साल पढ़ाई की है, ये इंटरव्यू में वो क्लियर होनी चाहिए. तो वो कॉन्फिडेंस आ ही जाता है. तुम ना टेंशन मत लो, मैम मैं हेजिटेट होती हूँ, मैम ये होती हूँ. किसी के भी सामने कभी भी तुम अपनी फ्रेंड को ले लो, बोले यार आज मुझे ना तेरे सामने एक अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, कर लूं मैं. तो ऐसे तुम खुद ट्राई कर सकते हो. यहाँ मेहताब, गुड आफ्टरनून मैम, आई एम आयशा सैफी. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ ITI विवेक विहार. आई लिव इन लोनी, गाजियाबाद. आई हैव सो many hobbies. आयशा प्लीज करेक्ट. मेरे को एक प्रॉपर ऑर्डर में चाहिए. प्लीज करेक्ट दिस आउट. मेरे को एक प्रॉपर ऑर्डर में चाहिए.
मैं अब अपनी इंट्रोडक्शन एक बार स्टार्ट कर रही हूँ, तुम लोग फिर इंट्रोड्यूस करना। पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ फिर से, ठीक है? फिर से इंट्रोड्यूस करूँ? रेडी एवरीवन? प्लीज देखना मैंने पहले क्या बोला, और मैं अब धीरे बोलूंगी, थोड़ा सा शांत होके। चलो, take a deep breath and let's start about. Suppose you all are my interviewers and you are judging me right now. So let's start it. Sir, ma'am, my name is Mehak. I belong to Delhi. My recent qualification is I'm graduated in commerce stream. I'm carrying an experience of 1 year. I'm very good in delivering classroom lectures. So, sir, apart from my resume, as far as my family background concerned, there are 4 members in my family, my parents, and we are 2 siblings. I am the youngest one, and if I talk about my hobbies, I am fond of listening live music, playing badminton, exploring different kind of places. That's all about me, sir. प्लीज थोड़ा सा इसको प्रॉपर मैनर में डालो, यू विल डू अ ग्रेट जॉब। ये जो अभी सब लिख रहे हैं थोड़ा सा प्रॉपर पे जाओ, थोड़ा सा। मैम कॉन्फिडेंस भी हो जाती हूँ, पर मैं जल्दी जल्दी बोल देती हूँ। सब लोग मुझे कहते हैं कि आगे थोड़ा धीरे बोलो। आरोही, मेरे साथ भी प्रॉब्लम है, आप अकेले नहीं हो। पहली बात ये बताऊं, जल्दी जल्दी बोल जाते हो ना। टेक अ डीप ब्रेथ, और कुछ नहीं। लाइक माय नेम इज महक, टेक अ डीप ब्रेथ, बट इतना भी डीप ब्रेथ नहीं लेना। थोड़ा सा डीप ब्रेथ एंड सोचो कि मेरी कोई ट्रेन नहीं छूट रही। ये इंटरव्यूअर मुझे थोड़ा टाइम देगा, उसने तभी उससे पूछा है, उसने मुझसे कि हाँ भाई टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वो आपको टाइम दे रहा है। तो इसमें कोई ट्रेन नहीं छोड़नी हमें, बस एक पोलाइट वे में उसे ये बता देना है कि मैं हूं कौन, अपने बारे में बताना है। महक ने लिखा है, हेलो मैम, माय नेम इज महक कौर ओबरॉय, आई बिलोंग टू दिल्ली, माय हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इज 12. So far as my family background concerned, there are 4 members in my family, including driver, and my mother is a homemaker, and my brother is pursuing his graduation. Please don't mention about your brother. If they ask about you what is your brother is doing, then you will mention that. If I mention about my hobbies, I'm fond of listening songs, networking, and playing badminton. Thank you. So, great, Mehak. Great. Okay, पारुल ने भी बहुत अच्छा लिखा है। सर, माय नेम इज पारुल, आई एम फ्रॉम दिल्ली, माय हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इज परस्यूइंग अ पार्ट ऑफ माय एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज 1 year. I'm from Delhi. My highest qualification is, थोड़ा सा पारुल, थोड़ा सा मेक इट करेक्ट, थोड़ा सा सेंस नहीं बन रहा। वो क्या हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, प्लीज करेक्ट दिस आउट। शिवानी ने लिखा है, माय नेम इज शिवानी, आई लिव इन मयूर विहार फेज 3, 96. आई हैव कंप्लीटेड BA फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माय फैशन डिजाइनिंग and technology from ITI Arab Kirai, Nizamuddin. My hobby is sketching, painting. I have 5 members in my family. My father is in Surendra Singh. He is an advocate. My mother is in Mrs. Mata Devi. She is in. Okay. Shivani, one thing, format एक सबसे पहले आएगा अपना नाम। पहले तो वो ग्रीट आ गया, my name, place. Then third is highest qualification. Then fourth is highest qualification के बाद highest qualification के अंदर ही बोलोगे apart from my academic qualification I have done my ITI. ठीक है, I have done diploma, और ITI का नाम लिखना। highest qualification तक सबको समझ आ गया। फिर अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, मेंशन दैट आउट। अगर मेंशन करो। देन आपका आता है स्किल्स, आपके पास कौन कौन सी स्किल्स है। स्किल्स के बाद आप बोलोगे अपार्ट फ्रॉम माई रेज्यूमे,
फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओगे एंड देन आप अपनी हॉबीज बताओगे. आपने क्या किया, आपने फैमिली बैकग्राउंड लास्ट में बताया एंड हॉबीज पहले. शिवानी प्लीज करेक्ट दिस. बाकी यू आर वेरी ग्रेट इन दिस एंड यू विल श्योरली क्रैक द इंटरव्यू. ओके, ज्योति ने लिखा है गुड आफ्टरनून मैम, ज्योति आई एम बिलोंग टू दिल्ली. और ये सब जो 78 लोग हैं, प्लीज चेक दिस आउट कमेंट बिकॉज इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है एंड आई विल श्योरली सेव दिस वीडियो फॉर यू ऑल एंड आई विल मेक श्योर दैट यू विल श्योरली क्रैक योर इंटरव्यू. जस्ट पोड़ के आ जाना है, ठीक है. और कोई हेजिटेशन नहीं. अगर तुम्हारे पास एक नोट्स होते हैं ना कि हाँ ये पॉइंट्स मुझे बोलने ही बोलने हैं, तो आप कोई भी आपको नहीं हरा सकता. श्रुति, श्रुति अमेजिंग. लास्ट में थैंक यू सर या मैम. फर्स्ट बार एक बार ग्रीटिंग करनी है, देन लास्ट में एक ग्रीटिंग करनी है, ठीक है. फर्स्ट में एक ग्रीटिंग करनी है एंड एक लास्ट में ग्रीटिंग करनी है. अच्छा, एक और चीज आप लोगों को मुझे बतानी है. सपोज मैं एक इंटरव्यूअर हूँ और मैं बोलती हूँ, मैंने आपका रेज्यूमे पढ़ा, तो मैं बोलती हूँ हेलो अनुप्रिया, टेल मी अबाउट योर सेल्फ. तो उसमें अपना नाम मत बोल देना, ठीक है, क्योंकि उन्हें आपका नाम पता चल चुका है और फिर आप बोलोगे माय नेम इज अनुप्रिया. नो, नॉट लाइक दैट. ओके, एक ये चीज. और एक सर की याद रखना, सर माय नेम इज दिस, सर आई एम दिस, सर आई एम दिस नहीं. सर सिर्फ पहले आएगा और लास्ट में आएगा. फर्स्ट पॉइंट ये. दूसरी चीज मैंने नोटिस करी आप लोगों में कि अगर इंटरव्यू ने आपका नाम बोल दिया है तो वाई यू विल स्पीक योर नेम, ठीक है. सीधा प्लेस से स्टार्ट करना. श्रुति, अनु या ग्रेट. अनु ने बहुत अच्छा लिखा है. श्रुति, आई रियली लाइक योर इंट्रोडक्शन, ग्रेट ग्रेट. प्लीज श्रुति का कमेंट देखो एंड अनु का भी कमेंट देखो. ज्योति, डन अ ग्रेट जॉब विद द वर्ब लिसन ऑलवेज टू कम विद इट. ये किसने लिखा है? तनु, आई डेंट अंडरस्टैंड योर कमेंट, प्लीज थोड़ा सा मेरे को एक्सप्लेन करो अपना कमेंट. तनु, कमेंट एक्सप्लेन करो मुझे. Shruti, hello sir, ma'am. My name is Shruti Vishwa. I belong to Delhi. My highest qualification is 12th from CBSE board. I am pursuing ITI of the trade COPA. I am pursuing ITI of the trade COPA. COPA भी नहीं, COP लिखा है. From Vivek ITI apart from resume. Shruti, I know this is a comment section mistake, but थोड़ा सा जब आप बोल रहे हो अपनी ITI के बारे में, तो ये बोलो अपार्ट फ्रॉम माई एकेडमिक क्वालिफिकेशन आई एम परस्यूइंग ITI या ITI कर चुकी हूँ, ऐसे कुछ, ठीक है. ऐसे नहीं आई एम परस्यूइंग ITI, क्योंकि आप क्वालिफिकेशन के अलावा एक डिप्लोमा कर रहे हो. अपार्ट फ्रॉम माई एकेडमिक क्वालिफिकेशन आएगा एंड देन. मीनू, ग्रेट मीनू, यू डन अ ग्रेट जॉब. मैंने पूरा पढ़ा है, प्लीज मीनू का कमेंट सेक्शन पढ़ो सब. इट इज वेरी ग्रेट, अमेजिंग. शिवानी, शिवानी, एज फार एज माई हाइएस्ट क्वालिफिकेशन कंसर्न. हाइएस्ट क्वालिफिकेशन क्या होती है? जो आपने अभी हाइएस्ट तक कर रखी है. मतलब सपोज अभी मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, ये मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है. मैंने अभी पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं की है, या अभी मैंने सिर्फ 12th की है, ये मेरे लिए हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है. ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन हुई. एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अलावा मैं ITI कर रही हूँ, अपार्ट फ्रॉम
my academic qualification. I'm doing ITI. Kriti, I just great. Kriti, you can mention about your hobbies also. You have done a Kriti Sharma, you have done great job. I think बहुत ही अच्छा लिखा आपने. With the verb listen, preposition is to. Always come with it. I am listening to or I listen to. तनु, आप verbs की बात करो कि I listen to or listening to. आप सीधा ये लिखो आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग लाइव म्यूजिक, दैट्स इट. मुक्ता, मुक्ता मुक्ता ग्रेट. मुक्ता ने पूरा प्रॉपर प्रोसीजर किया है. ग्रेट मुक्ता, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. प्लीज चेक मैम. मैम खुशी गुप्ता, खुशी कहाँ पे है? खुशी खुशी खुशी. रजनी, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब. खुशी, आई कांट फाइंड योर कमेंट. पलक, पलक, you have done a great job. Renu, please mention the salutation like hello ma'am, hello sir in the first and last. उसके बीच में कहीं सर मैम नहीं बोलना, क्योंकि इतना तो सर सर करोगे पक जाएंगे वो. तुम्हें जस्ट अपने बारे में बताना है, पहले सर लास्ट में सर. Mansi Deol, good afternoon, ma'am. My name is Mansi Kumari. I am 21 years old and I am BA graduate. Mansi, कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? तो प्रॉपर प्रोसीजर प्लीज. पहले नेम, प्लेस, फिर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, फिर एक्सपीरियंस और स्किल्स अगर है तो, फिर अपार्ट फ्रॉम माई रिज्यूमे फैमिली बैकग्राउंड, एंड लास्ट में क्या आएगा? हॉबीज. एंड लास्ट में बोलना है दैट्स ऑल अबाउट मी. ये लाइन मेरे को सब में चाहिए. मैम प्लीज चेक माई कमेंट. गरिमा, प्लीज आप लोग जो 70 लोग हो प्लीज चेक करो इन लोगों ने कैसे इंट्रोडक्शन दिया. आई थिंक दे हैव डन अ ग्रेट जॉब. सॉरी अगर मैंने किसी के कमेंट्स नहीं पढ़े, रियली सॉरी, बट या यू ऑल आर कमेंट्स की मैंने पढ़ नहीं पाई. प्लीज मानसी, प्लीज करेक्ट योर इंट्रोडक्शन. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे वर्क करना पड़ेगा. मैम प्लीज चेक ऑल्सो माई कमेंट, टेल मी इट्स ओके और नॉट. आरोही, आई हैव चेक्ड योर इंट्रोडक्शन. आई थिंक इट इज ग्रेट. आपका एक प्रोसीजर था, आपने जो इंट्रोडक्शन दी, इट्स ग्रेट. अच्छा, थोड़ा से क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं. सबसे पहले क्या आता है? सब लिखना कमेंट डाउन सेक्शन में. इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आती है सैल्यूटेशन, हेलो सर एंड मैम, सब लिखो. प्रतिभा ने कमेंट डाला है. Hello ma'am, my name is Pratibha. I live in Delhi. My highest qualification is 12 pass from CBSE board, Central Board of Secondary Education. CBSE मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को पूरा चाहिए, Central Board of Secondary Education. And recently I'm done graduation from my highest qualification का मतलब समझो, जो आपने recently किया है. 12th तो आपने कर चुके हो ना, recently जो किए पहले वो. मैम प्लीज चेक माय कमेंट. या श्योर, मैं सबके कमेंट्स चेक करूंगी. ये सेशन सेव होगा पक्का. रवि सिंह,
Hello, ma'am. My name is Garima Singh. I belong to Ghaziabad. My highest qualification is 12th, and apart from my academic qualification, now I am pursuing basic cosmetology. Uh, Please correct this. Now I'm pursuing. This is your diploma, right? So apart from my academic qualification, I'm doing diploma. ठीक है. हाँ चलो ठीक है, सबने हेलो लिखा है. अच्छा, सेकंड चीज क्या लिखी है? सेकंड चीज क्या होती है हेलो मैम के बाद? सेकंड चीज नाम. नाम लिखो सब अपना. माय नेम इज लिख सकते हो, या और क्या लिख सकते हो? माय नेम इज महक या आई एम महक. ऐसा दो चीजें लिख सकते हो, बोल सकते हो. सॉरी, माय नेम इज महक या आई एम महक. सब लिखो. प्रिंस सोनी, आई विल चेक योर, पूरा चेक करूंगी मैं आपका. जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. मैं पूरा ये चेक करूंगी आप लोगों का कमेंट सेक्शन. ये जब सेशन खत्म हो जाएगा, आई विल श्योरली चेक दिस आउट. प्लीज सेकेंड चीज नेम लिखो सब. माई नेम इज दिस या आई एम. I am Pooja, I am Garima. Hello ma'am, I am Garima. Great. अंजनी ने लिखा है, श्रुति ने लिखा है, महक ने लिखा है, कृति ग्रेट, नगमा, पलक, अवनी, अंजलि, पलक, सबने सही लिखा है. अब नेम हो गया. नेम के बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन कैसे लिखोगे? एकेडमिक हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में मतलब तुमने जो करेंटली पहले कर रखी है वो लिखोगे. चलो सब अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लिखो. सब अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लिखो जल्दी प्लीज. हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में क्या क्या कर सकते हैं आप? I am a graduate या I am a postgraduate या I have recently done my graduation from this university. Like I have recently done BBA, Bachelor's in Business Administration from Guru Gobind Singh Indraprastha University. Like that. मैम सेकंड पे प्लेस आती है. हाँ सेकंड पे प्लेस आती है. फर्स्ट नेम, फिर प्लेस, फिर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन. या राइट द प्लेस. पहले प्लेस लिखो. प्लेस देन हाईएस्ट क्वालिफिकेशन. या इन दोनों को इकट्ठे लिखो. इन दोनों को इकट्ठे कमेंट बना के भेजो, मैं चेक करूंगी. हाँ नेम के बाद प्लेस आएगा. सॉरी माय कंप्यूटर की चार्जिंग नहीं थी. या जस्ट 10 मिनट्स लेफ्ट. जल्दी से सब प्लेस लिखो. नेम के बाद प्लेस. प्लेस. रजनी गुड आफ्टरनून. Arohi, I have recently completed my 12th from Central. Arohi, great.
रंजिता गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून हो गया. अब तुम प्लेस लिखो एंड देन हाईएस्ट क्वालिफिकेशन. अच्छा, yeah, I belong to Delhi. I belong to Delhi. Great, Jyoti and Avni. I think from starting you all are there. ग्रेट. एंड प्लीज जिन जिन लोगों ने पूरा एक इंट्रोडक्शन दिया है प्लीज उन्हें देखो. उन्होंने बहुत अच्छी ग्रेट जॉब. और मैं तुम्हारे को एक कमेंट सेक्शन में बता दूंगी कि नेम पहले क्या क्या आता है. ये सारा फॉर्मेट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में चला जाएगा. एंड इट रियली नाइस टू मीट यू ऑल. रियली नाइस. मेरे को पता नहीं था मैं कैसे करूंगी इस लाइव सेशन को, या बट इट्स वेरी गुड टू कम्युनिकेट विद यू ऑल. Yeah, Abhilat Jatni. Hello, ma'am. I'm Monica. I belong to Delhi. My highest qualification. Please correct this out. Is BA passed. Is क्यों आएगा? My highest qualification क्या is आएगा? Please check this out. In art stream, apart from my resume, as per as my family background concerned, there are 5 members in my family. You can रेज्यूमे से पहले आप स्किल्स के बारे में बात कर सकते हो. और अगर तुमने आईटीआई भी करी है वो भी डाल सकते हो आप लोग. या पारुल करेक्ट करेक्ट करेक्ट. शिफाली धवन करेक्ट. I live in Delhi at Mangolpuri. My qualification is my highest qualification is I have is 12 pass from CBSE with science stream. Apart from my academic qualification, I have done ITI diploma. From where you can mention that. मैम मेरा भी कमेंट पढ़ो. कौन है ये? प्लीज जो जिन जिन लोगों ने कमेंट्स नहीं किए प्लीज कमेंट करो. टेल योर इंट्रोडक्शन एंड I think you will surely rock your interview with this kind of introduction. And be polite when you are saying about true to yourself. And please सच्चाई से सारा इंटरव्यू देना है. And never hesitate to tell about yourself with anyone. अगर हेजिटेट कर गए वहां पे गए, हेजिटेट मत करो. हेजिटेट आप 2-3-4 किसी को भी अपना सुनाओ इंट्रोडक्शन की. प्रैक्टिस अभी से प्रैक्टिस करोगे. दिस विल रियली हेल्प यू आउट. खुशबू गुड आफ्टरनून मैम. आई एम खुशबू. आई लिव इन दिल्ली. माई क्वालिफिकेशन इज माई हाइएस्ट क्वालिफिकेशन खुशबू इज is I am pursuing BA first year from Delhi University. ड्यू क्या होता है? ड्यू हो चुकी है वो. DUE ड्यू. And also ITI in trade. नहीं. Apart from my academic qualification, I am doing diploma from पूरा. ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम माई रेज्यूमे फिर फैमिली के बारे में बोलो, फिर हॉबीज बोलो. खुशबू करेक्ट दिस. आई बिलोंग टू दिल्ली एंड आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन. स्वामी श्रद्धा. थैंक यू जस्सी. थैंक यू. रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स दैट यू हैव टेकन सम टाइम. थैंक यू एवरीवन. आई एम क्लोजिंग दिस सेशन एंड पक्का श्योरली you will clear the interview. and please procedural way में पूरा बोलना है अपने बारे में. ठीक है. and you will surely rock the interview. Thank you everyone for coming out this session. Thank you everyone. and please give feedbacks about these sessions because this is I think second time I'm doing this live session. Please comment down and give feedbacks to me. Thank you everyone. Hope I am audible to everyone.
Anjali, I am Anjali. I belong to Delhi and I have completed my highest qualification is I have done graduation from Delhi University. Apart from my academic qualification, I am doing ITI. ऐसा कुछ. Anjali, great. Shruti, thank you so much for coming out. Thank you, Jassi. Thank you, Meenu, for coming out. Thank you, Princey. Thank you, Mukta. Thank you, Arohi. Thank you, Anjali. Thank you, Nagma. Thank you, Kavita, for being there, for always supporting us. Thank you, Renika. Sorry if I spell wrong your names. Thank you, Vandana. Thank you, Mamta. Thank you, Fali. Thank you, Anu. Thank you, Dolly. Thank you, Iman. Thank you, Renika. Thank you, Shweta. Thank you, Jyoti. Jyoti, you are very great and your introduction is very good. I have read this out and even I will read all your introduction. Please comment down your introduction in the section and I will surely, if I like your comment, then your introduction is correct, go to go. Thank you, Mansi. Thank you, Anjali. Thank you, Ravi. Listening all the time. Yeah. Thank you, Nagma. Thank you, Anjali. Thank you all for keep supporting Quest and Quest Alliance will surely आपको बहुत सारे लाइव सेशंस देने वाले हैं आज इसके बाद एंड आपको वर्किंग एल्यूमिनाई सेशन अभी अपकमिंग सेशंस मिलेंगे कल भी आपको एक अपकमिंग वर्किंग एल्यूमिनाई सेशन मिलेगा please come to that working alumni session it's tomorrow we'll surely provide you the timings and thank you for always being there thank you and please comment down the feedbacks and your introduction thank you everyone and surely rock the interview